Welcome student. In the previous class we have discussed about the first chapter of 11th biology, that is the living world. We have completed our chapter, but today we are going to discuss a different chapter from the different unit, and the unit is human physiology. Yes, we are going to study about the unit 5th, that is human physiology, and we are starting the chapter 16, that is digestion and absorption. Now the question arises, why we are taking a different unit and a different chapter. So we are starting this particular unit or this particular chapter because you have studied different things or study different things about the human physiology, which we are going to study in this particular unit in previous class, that is in 10th class also. We have to study about digestion, respiration, excretion and circulatory system, which you have studied in life process chapter in 10th class. We are also going to study about nervous coordination, neural coordination. We are also going to study about chemical coordination, that you have also studied in control and coordination chapter in 10th class. So this unit will be easy and will be familiar to you, and get to pick it up very quickly. So we are starting from digestion and absorption. So first of all, we should know what actually digestion is. So what is digestion? Anybody of you knows what is digestion? Yes, digestion is the process of breaking down complex food substances into simple absorbable form. Yes, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, उसको कहीं ना कहीं हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके और सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, जिसको कि एब्जॉर्ब किया जा सकता है. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज डन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये पूरी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, what is digestive system? So digestive system is actually a system which deals with the digestion of food. So the digestion of food is done by chemical methods and biochemical methods and by mechanical methods also. Both these methods combine and helps in the digestion of food, that is breaking down of food. The process of digestion is a complex process, and when we talk about higher organism, this particular thing or this particular process is done with the help of digestive system only. In the higher organism or higher animals, they have holozoic type of nutrition. That means they take in solid food substance and then break it down into their body. Humans have a complete digestive system in their body, which is made up of or which is mainly comprises of alimentary canal and other digestive glands. ठीक है, ये हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ डील करता है, और मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सो दैट इज कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और साथ में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, जो यदि हम बात करें कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी वन बाय वन अपने सिक्वेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जा सके सिंपलर सब्सटेंसेस में. दैट मीन्स if you have taken carbohydrate, that carbohydrate will be broken down into simpler sugar, that is glucose. If you have taken protein in your diet, that will be broken down into amino acid. ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको एकदम सिंपल फॉर्म में, जो कि एब्सॉर्बेबल फॉर्म होता है, उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है.
ठीक है। फिर यदि हम बात करें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का बना होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल इज। ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल, डू यू नो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? यस, दिस एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज GIT, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एंड इफ यू वांट टू डिफाइन GIT, यू कैन से दैट एलिमेंट्री कैनाल और GIT इज अ लॉन्ग hollow tube like structure starting from mouth to and ends at anus and contains almost all the digestive organs or contains all the organs which helps in the process of digestion along with some accessory glands which helps in the process of digestion। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये एक लॉन्ग, काफी लंबी होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक एक्सटेंड करता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? क्योंकि कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं वो GIT के अंदर नहीं प्रेजेंट होती, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड दी GIT बट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय सिक्रीटिंग देयर सिक्रीशन इनटू द GIT और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और GIT के अंदर अपने सिक्रीशंस जो हैं वो सिक्रीट करके इस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। So students, now let's discuss about the structure of GIT and that or alimentary canal। स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो GIT का स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी डिफरेंट होता है, यानी कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया दैट इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, बट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज हैविंग अ वेरिंग डायमीटर, यानी कि इसका डायमीटर भी काफी वेरी करता है एंड इट contains 5 different layers of muscles because it is also made up of muscles। ये muscles से बना हुआ होता है और 5 different type की muscles जो इसके अंदर present होती है, जो layer present होती है वो कौन कौन सी होती है? So the first layer is serosa। इसके जो पहली लेयर होती है वो serosa होती है। दूसरी होती है serosa के बाद वाली लेयर होती है muscularis। Then third layer is serosa muscularis, serosa muscularis, the third one is submucosal layer and the last one is mucosa। अब इनके बारे में यदि हम डिस्कस करें कि ये लेयर्स जो हैं वो कैसी होती हैं और क्या होती हैं, तो हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। यहाँ पे यदि हम पूरा जो एक क्रॉस सेक्शन को स्टडी करें GIT के, तो एक क्रॉस सेक्शन को हमने स्टडी किया जिसमें कि नॉर्मली ये 4 लेयर हर पार्ट पे प्रेजेंट होगी, चाहे वो पार्ट डायलेटेड हो या नैरो हो। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। पहली लेयर होती है कौन सी? सेरोसा लेयर। ठीक है, दूसरी होती है मस्कुलरिस लेयर, सेरोसा मस्कुलरिस। फिर उसके बाद आएगा सबम्यूकोसा, एंड द लास्ट लेयर इज म्यूकोसा। ये 4 डिफरेंट लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, जिनमें पहली लेयर है सेरोसा, दूसरी लेयर है मस्कुलरिस, तीसरी है सबम्यूकोसल और चौथी है म्यूकोसल लेयर।
ठीक है, अब इसमें ये पहली यदि हम डिस्कस करें तो ये एक लेयर इस टाइप से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये सेकंड लेयर है, सेरोसा के बाद मस्कुलरिस लेयर, थर्ड लेयर जो कि होती है सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसल लेयर एंड द लास्ट वन इज म्यूकोसल लेयर। तो यदि हम बात करें कि सेरोसा लेयर जो है वो क्या है, सेरोसा लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहरी लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ मीजोथीलियम, जो किसकी बनी होती है, मीजोथीलियम की बनी होती है। ठीक है, मीजोथीलियम क्या है, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन का एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये सेरोसा लेयर भी उसी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इट इज मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। उसके बाद मस्कुलरिस लेयर के बारे में यदि हम बात करें, सो दिस इज द सेकंड वन इज मस्कुलरिस लेयर। एज द नेम सजेस्ट इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये किसकी बनी हुई होती है, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, और मसल्स भी कौन से, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ टाइप ऑफ मसल्स। What do you mean by smooth muscles? That means these are unstripped muscle or involuntary muscles. That means these muscles do not work on human will power. ये हमारे विल पावर पे कंट्रोल नहीं होते, ये ब्रेन के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं या अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी इच्छा के बिना काम करते रहते हैं। लेकिन यदि इसमें भी हम बात करें, सो द मस्कुलर लेयर इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ मसल्स। इसमें दो टाइप के मसल्स होते हैं। एक टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सर्कुलर मसल्स। ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसी में सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाई दीज टू टाइप ऑफ मसल्स आर present in this particular muscularis layer और elementary canal, और इसमें दोनों में ये ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, because these two muscles or the movement of these two muscles helps in peristaltic movement के पीछे यही दो मसल्स होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है, rhythmic contraction and relaxation of smooth muscles of GIT in order to push the food forward। यानी कि रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है GIT के अंदर, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है, उसी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। एंड दैट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल्स। ठीक है, ये दोनों लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरी लेयर जो होती है वो होती है हमारी थर्ड लेयर, जो कि होती है सब म्यूकोसल लेयर। दिस वन इज सब म्यूकोसल लेयर। अब सब म्यूकोसल लेयर के बारे में यदि हम बात करें, सो व्हाट इज सब म्यूकोसल लेयर, दिस इज द लेयर विच इज प्रेजेंट बिलो द मस्कुलरिस लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ वेरियस नर्व, वेरियस लूज कनेक्टिव टिश्यू अलॉन्ग विथ रिच सप्लाई ऑफ नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। यानी कि ये जो लेयर होती है, ये लेयर बिल्कुल मस्कुलरिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, और यदि हम बात करें तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। साथ में इसमें रिच सप्लाई होता है किन किन चीजों का, इट इज रिचली सप्लाइड विद नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, तीनों का यहाँ पे प्रेजेंस बना रहता है। एंड द लास्ट वन इज
म्यूकोसल लेयर, जो लास्ट लेयर होती है वो म्यूकोसल लेयर होती है। ये म्यूकोसल लेयर के बारे में यदि हम बात करें, व्हाई इट इज नेम्ड सो, बिकॉज इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सिक्रीटिंग म्यूकस। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, तो ये म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है लगातार। व्हाई इट सिक्रीट्स म्यूकस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, सो जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट और टू लुब्रिकेट द टिश्यूज, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डैमेज। ठीक है, किसी भी टाइप के डैमेज से बचने के लिए या उसको लुब्रिकेट रखने के लिए म्यूकस सिक्रीट लगातार करती है। जैसा कि यदि आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है, सो दिस म्यूकस ऑल्सो हेल्प्स आवर जीआईटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसिड। उस एसिड से बचाने का भी ये म्यूकोसल लेयर काम करती है। एक चीज और, इट ऑल्सो हैव इर्रेगुलर अप फोल्ड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इसके सरफेस पे इर्रेगुलर अप फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज villi and mainly seen in the small intestinal area. Mainly seen, that means the number is very high at small intestinal region. ये जो small upfolds होते हैं, finger like projections जो होते हैं, upfolds जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं villi, which helps in the absorption of food or absorption of digested food by increasing the surface area. इस सरफेस एरिया को बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं फूड के डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द होल स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ जीआईटी। जीआईटी का ट्रांसवर्स सेक्शन हमने लिया हुआ है। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है कि सपोज इस टाइप से होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो लिया हुआ है उसका हमने इस तरह से एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप की लेयर्स जो है वो देखने को मिलती है। दीज लेयर्स जनरली प्रेजेंट इन ऑल द रीजन्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी के किसी भी रीजन से आप इसको कट करें, आपको जीआईटी के ट्रांसफर सेक्शन में ये सारी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, वेदर इट इज डायलेटेड पार्ट और वेदर इट इज नैरोअर पार्ट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यदि हम बात करें, यदि आप चाहते हैं तो एक बार और इसको क्लियर कर लेते हैं। सेरोसा मस्कुलरिस सबम्यूकोसल म्यूकोसा, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, सेकंड मस्कुलर लेयर जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है सर्कुलर। तीसरी जो लेयर होती है वो सबम्यूकोसल लेयर होती है, जो कि मस्कुलरिस लेयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और यदि बात करें तो इसे रिच नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल सप्लाई और लिम्फ वेसल सप्लाई भी मिलता है। लास्ट लेयर जो होती है वो होती है म्यूकोसल लेयर, जो कि म्यूकस सिक्रीट करने का काम लगातार करती है। इसमें रेगुलर अपफोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, सॉरी इरेगुलर अपफोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम विलाई भी बोलते हैं, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होती है। और ये वाला जो पार्ट होता है बीच में, ये दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन, क्योंकि ये एक कैविटी होती है जिसके थ्रू फूड जो है वो ट्रेवल करता है। तो ये पूरा होल जीआईटी जो है उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है, सो वी ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन इन्हें स्टडी करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू their sequence, the first organ which we are going to study is mouth and buccal cavity. So here we are discussing about the first organ of alimentary canal, that is mouth. Do you know what actually mouth is? Can you define it? Yes or no? Mouth and buccal cavity. We are going to discuss about mouth and buccal cavity both. So what is mouth? Mouth is a slit-like opening which is enclosed or which is bounded by two soft movable lips, which also
opens into vestibule and finally leads to buccal cavity. यानी कि माउथ एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, छोटी एक ओपनिंग होती है बिल्कुल आगे की तरफ, ठीक है, स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जो कि 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स के द्वारा इनक्लोज की जाती है, बाउंडेड की जाती है, ठीक है, जो अंदर चल के वेस्टिब्यूल में ओपन होती है. व्हाट एक्चुअली वेस्टिब्यूल? सो वेस्टिब्यूल इज इन स्पेस which is enclosed by lips and cheeks externally and teeth and gums internally. ठीक है, यानी कि बाहर से लिप्स और चीक्स उसको इंक्लोज करेंगे, अंदर से टीथ और गम्स उसको इंक्लोज करेंगे, एंड दैट फाइनली लीड्स इनटू द बकल कैविटी, जो कि फाइनली बकल कैविटी में आगे बढ़ जाएगा. बकल कैविटी यानी कि ये जो कैविटी प्रेजेंट है, ये जो खाली जगह यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी. तो ये हुआ माउथ और बकल कैविटी. बट our buccal cavity or the buccal cavity of the human mainly contains 2 components, and these 2 components are teeth and gums. Teeth and tongue. ठीक है, ये 2 मेन कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, टीथ और टंग. ठीक है, बट सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी टीथ. टीथ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. मेनली जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स जो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके टीथ को हम 3 चीजों से कैरेक्टराइज करते हैं. तो पहले हम बात कर लें व्हाट एक्चुअली टीथ आर. ठीक है, सो टीथ, these are the hard structure present on both the jaws and embedded into the sockets of jaw bones. ठीक है, यानी कि ये वो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं दोनों ही जॉ पे, अपर जॉ पे भी और लोअर जॉ पे भी. और किसमें एम्बेडेड होते हैं? तो जो बोन्स के जो सॉकेट होते हैं उनके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, फंसे हुए होते हैं, पूरी तरह से फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, अब यदि हम बात करें कि ये फिक्स्ड हैं, हार्ड हैं, एंड दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ इनेमल, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड इन द मैमल्स बॉडी. मैमल्स की बॉडी में पाई जाने वाला सबसे हार्ड मटेरियल दैट इज इनेमल के ये बने हुए होते हैं. बट 3 चीजें जो मैमल्स के अंदर टीथ को कैरेक्टराइज करती हैं, 3 जो चीजें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सो फर्स्ट वन, दे आर थैकोडोंट. मैमल्स आर थैकोडोंट. मैमल्स आर डाइफायोडोंट and mammals are also heterodont. ये 3 चीजें यहां पे रहेंगी, यानी कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स के टीथ जो रहेंगे वो कौन कौन से कैरेक्टर पोजेस करेंगे? दैट दे आर थैकोडोंट, दे आर डाइफायोडोंट और एंड दे आर हेटेरोडोंट. ये 3 चीजें रहेंगी. अब ये 3 चीजें क्या है? व्हाट आर दीज थिंग्स? सो फर्स्ट हम डिस्कस करें थैकोडोंट के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय थैकोडोंट? तो डोंट मतलब होता है टीथ एंड थैको वर्ड मीन्स फिक्स्ड. दैट मीन्स कि जो मैमल्स होते हैं दे हैव फिक्स्ड टीथ. उनके दांत जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, ये फिक्स्ड कैसे होते हैं? सो दे आर एम्बेडेड इनटू द सॉकेट ऑफ जो बोन्स. जो बोन्स के अंदर जो सॉकेट प्रेजेंट होता है उसमें ये फिक्स्ड होते हैं, एंड दे डीपली पेनिट्रेट्स बाय और थ्रू देयर रूट्स. इनकी प्रॉपर जो रूट्स होती है वो काफी डीप पेनिट्रेट करती हैं सॉकेट जो होता है जॉ बोन्स के अंदर उसमें, जिसकी वजह से ये परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं, यानी कि दे आर नॉट मूवेबल. यू कैन नॉट मूव योर टीथ
आप अपने टीथ को मूव नहीं कर सकते, टीथ को मूव नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर थैकोडोंट। दूसरी चीज डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब दैट मीन्स दे आर हैविंग और मैमल्स आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और टू डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो अलग अलग तरह के टीथ सेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो शुरुआत में जो होते हैं, यानी कि शुरू में जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो धीरे धीरे नए दांत आते हैं, ठीक है। एंड दैट फर्स्ट सेट फ्रॉम बर्थ टू अप टू 7 और 8 इयर्स जो टीथ जो शुरुआत में आते हैं, दे आर कॉल्ड एज मिल्क टीथ, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेसिडियस टीथ, जिनको हम डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। यदि इनके बारे में बात करें, दे आर 20 इन नंबर। इनका नंबर कितना होता है, ये टोटल 20 होते हैं टीथ। यदि हम बात करें, दे आर ऑल्सो टेम्परेरी टीथ। ये कैसे होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, कुछ समय तक यानी कि कुछ उम्र तक रहते हैं शुरुआत में, फिर धीरे धीरे ये अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। और उसके बाद फिर जो दूसरा सेट होता है वो आना स्टार्ट होता है, एंड दैट सेट इज कॉल्ड एज परमानेंट टीथ एंड ऑल्सो नोन एज एडल्ट टीथ। उनको एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड टाइप में आते हैं, परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ के बारे में हम बात करें तो ये दोनों ही अपर और लोअर जॉ में, यदि हम इनके नंबर के बारे में बात करें, दे आर 32 इन नंबर एंड दीज आर परमानेंट। परमानेंट मीन्स ये आने के बाद थ्रू आउट लाइफ इन्हीं को यूज हमें करना है। इफ इन केस दे ब्रेक्स अवे और लॉस्ट, किसी भी रीजन से यदि ये टूट जाते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस नहीं होने वाले हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट चीज आती है वो है हेट्रोडोंट। व्हाट इज एक्चुअली हेट्रोडोंट, ठीक है, तो मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बता देता हूं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। यानी कि अभी तो हमने दो जो बात की मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ के बारे में, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट ऑफ टीथ। बट हेट्रोडोंट के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो ये हो रही है कि एक ही सेट के अंदर, यानी कि एडल्ट टीथ जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो एडल्ट टीथ 32 होते हैं टोटल, एंड दे कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। उनके अंदर भी अलग अलग तरह के टीथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सो द फर्स्ट वन इंसीजर, दूसरे कैनायंस, तीसरे प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलार्स। प्री मोलार्स एंड मोलार्स, ये होते हैं हमारे पास टीथ। अब इनके बारे में हम बात करें, सो दीज आर हैविंग डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज एंड दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस एज वेल। इनके शेप भी अलग होते हैं, साइज भी अलग होता है, और इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसीजर्स, फंक्शन भी हम देख लेते हैं। दीज इंसीजर्स आर यूज्ड इन कटिंग ऑफ टीथ। ये टीथ sorry, not actually cutting of teeth, they are used in cutting of food. Then canines, these are used for tearing of food. Then premolars, these are used for crushing of food, and the last one, molars, are used for grinding of food. ठीक है, ये इनके फंक्शन होते हैं। तो हम देख लेते हैं, जब फर्स्ट बिल्कुल सामने की तरफ जो दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर बोलते हैं। ये जो सामने 2 और 2 नीचे 4 जो होते हैं
ये मेनली इंसीजर्स होते हैं, दे आर यूज फॉर कटिंग ऑफ टीथ। तो नॉर्मली हम यहाँ से जब भी कोई चीज खाते हैं इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, जैसे आपने बनाना वगैरह खाया होगा तो हम उसको कट करके और फिर खाते हैं। सो नॉर्मली हम इस टाइप से उसको यूज करते हैं और कट करके खा लेते हैं, ठीक है। कैनाइन्स के बारे में बात करें, दे आर यूज फॉर टीयरिंग ऑफ फूड। कैनाइन्स यहाँ पे इस साइड पे दोनों तरफ जो शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैनाइन्स। ये किस काम में आते हैं? टीयरिंग के लिए। तो जैसे यदि एग्जांपल के तौर पे हम लें कि शुगर केन वगैरह यदि आपने कभी खाया हो तो शुगर केन को हम सामने से इस तरह से रख के और कट नहीं करते, वी कैन नॉट कट इट लाइक दैट, ठीक है। वी हैव टू टीयर द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ शुगर केन लाइक दिस ओनली विद द हेल्प ऑफ आवर कैनाइन्स। हम कैनाइन्स की हेल्प से ही इसे कंप्लीट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, बिकॉज द फंक्शन ऑफ कैनाइन इज द टीयरिंग ऑफ फूड। वो फूड को टीयर करते हैं, छीलते हैं, चीरते हैं या फाड़ते हैं, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई कार्निवोरस एनिमल्स हैव लार्जर कैनाइन्स। इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनके कैनाइन्स थोड़े ज्यादा लार्ज होते हैं क्योंकि उनको उसका ज्यादा काम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें प्रीमोलर्स, तो जस्ट कैनाइन के बाद जो थोड़े फ्लैट जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का फंक्शन क्या है? तो जो हार्ड फूड सब्सटेंस हमने माउथ के अंदर रखा है उसको कहीं ना कहीं ये मैस्टिकेशन के प्रोसेस के दौरान क्रश करके फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। फिजिकली ब्रेक डाउन करने का मतलब ये कि यदि ज्यादा बड़ा पार्ट है तो उसको इस तरह से क्रश करके ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये प्रीमोलर्स का काम है। द लास्ट वन आर मोलार्स। तो मोलार्स का काम क्या होता है? तो ये जो क्रश्ड फूड है उस क्रश्ड फूड के साथ सलाइवा भी मिक्स हो जाता है उसी टाइम पे, तो ये उस क्रश्ड फूड को टोटली ग्राइंड कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसको हम स्वेलो करके हमारे जीआईटी के थ्रू स्टमक तक पहुंचा सके, यानी कि वो जीआईटी इसोफेगस के थ्रू फिर ये स्टमक तक जाता है। तो ये काम होता है मोलर्स का। सो द थ्री मेन फीचर्स ऑफ मैमल्स टीथ आर, कौन कौन से तीन फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए? फर्स्ट वन इज थैकोडोन, दैट मीन्स दे हैव फिक्स्ड टीथ इनटू द जॉ और इनटू द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। सेकंड, डाइफाइडोन, दे हैव टू सेट ऑफ टीथ, डेसिडियस यानी कि मिल्क टीथ एंड एडल्ट टीथ। एंड द लास्ट वन इज दे आर ऑल्सो हेट्रोडोन, दैट मीन्स इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ teeth they contains different types of teeth, जिसमें हमने चार पढ़े, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, एंड देयर फंक्शन इज आल्सो डिफरेंट। तो ये हमने डिस्कस किया आज। नेक्स्ट इसी में अभी बकल कैविटी के अंदर एक और पार्ट बचा हुआ है, दैट इज टंग। टंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स which helps in the process of digestion or are the part of digestive system like pharynx, esophagus, stomach, and then small intestine, large intestine, rectum, anus, accessory glands like liver, pancreas, these and intestinal glands, gastric glands। तो ये सारी ग्लैंड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी कि सारी ऑर्गन के बारे में हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। टिल देन वर्क हार्ड and enjoy your studies. Thank you, students.